हेलो बच्चों, in present video lecture we are going to start a new unit, chapter number 9, coordination compounds. Before I start the actual content, let us have the brief idea about the terms that we are going to use in this chapter. So I am writing a coordination compound over here, which is CONH36Cl3. When this compound undergoes dissociation or ionization, it will form this kind of ions. See, these are very different from the normal compounds. Let us say I am comparing this with the cobalt chloride. So when cobalt chloride undergoes dissociation, it forms ions like this, which are simple ions. But these compounds, when undergoes dissociation, they forms a special type of compounds, yeah, special type of ions. So what we can write about coordination compounds? They are special class of compounds. They are special class of compounds which gives complex ions upon dissociation, which gives complex ions upon dissociation, जो dissociation के ऊपर complex ions देते हैं. In this complex ions there are various terms. So if you look at this complex ion, you can see one metal atom over here. So this cobalt is known as central metal atom. Central metal atom. This central metal atom is attached with the electron rich species. This ammonia is electron rich species. This electron rich species are known as ligands. इन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम लोग लिगेंड्स बोल सकते हैं. दिस लिगेंड्स आर आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. दिस लिगेंड्स आर आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. लिगेंड्स के बारे में अगर आप बात करें तो वो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हो सकते हैं. These two on combination, that is the central metal atom and the ligand on combination, can be termed as coordination entity. इसको हम बोलते हैं coordination entity. Coordination entity. इन दोनों को कॉम्बिनेशन में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कॉम्बिनेशन में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. अच्छा, उसके बाद जिस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग इस आयंस को एनक्लोज करने के लिए यूज करते हैं उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. बच्चे यहां पर आकर के थोड़ी देर कंफ्यूज होते हैं बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो चलो मैं क्लियर कर देता हूं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी बात हो रही है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसके अंदर जो भी चीज है प्रेजेंट है वो एक यूनिट की तरह होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. खास ध्यान में रखो कि जब इसका डिसोसिएशन हुआ तब ये आयन का डिसोसिएशन नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर के आयंस का ही डिसोसिएशन हुआ है. ये तो अकेला एक सिंगल आयन की तरह बिहेव कर रहा है. अच्छा, यहां पर जो क्लोराइड आयंस हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, दे आर काउंटर आयंस. ये काउंटर आयंस होते हैं. ये मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम आगे समझेंगे. एज ऑफ नाउ आपको इतना क्लियर करना है कि इनको हम लोग काउंटर आयंस बोलते हैं. काउंटर आयंस का चार्ज इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के चार्ज से ऑपोजिट होता है. ठीक है, काउंटर आयंस जो हैं दे आर ऑपोजिट टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं. दे आर ऑपोजिट टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो दीज आर द टर्म्स विच यू आर सपोज टू रिमेंबर
If you remember these terms, you will be finding coordination compounds easy. We have learned कि coordination compounds upon dissociation gives complex ions. This complex ion is not undergoing any further dissociation, it is acting as a single unit. This cobalt is known as central metal atom. These are electron rich species known as ligands. This can be either neutral molecules or negatively charged ions. If you write neutral molecules, we will be adding with lone pairs of electrons. With lone pairs of electrons. अगर ये neutral molecules हैं तो इनके पास lone pairs of electrons होंगी. You can see that ammonia also have lone pairs of electrons. They can be negatively charged ions also. This two upon combination is known as the coordination entity. The square bracket which we use for enclosing them is coordination sphere, and the another ions which are having opposite charge compared to the coordination entity or coordination sphere are known as counter ions. These represent the oxidation state of the metal atom. These are the terms that you are supposed to understand. Now, Werner was the first scientist which started the study of coordination compounds. So let us understand the Werner's experiment and Werner's theory which he gave in this coordination compounds. Let us understand about the Werner's theory. So we are supposed to understand the Werner's experiment or Werner's theory. This is very important question. Werner was the first scientist who started the study of coordination compounds. Alfred Werner was the full name. तो Alfred Werner ने क्या करा? तो Alfred Werner ने 3 सैंपल्स लिए, 3 ग्लास बीकर्स लिए, ऐसा समझो. उन 3 ग्लास बीकर्स के अंदर 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड ऐड किया. इन एवरी ग्लास बीकर वर्नर एडेड 1 moles of cobalt chloride. In first beaker he added 5 moles of ammonia. He added 5 moles of ammonia. In second he added 4 moles of ammonia, and in third he added 3 moles of ammonia. So this was written like this. Instead of plus, I am writing this as a single compound. Cobalt chloride, 5 ammonia, 4 ammonia and 3 ammonia. So 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड लिया, उसके साथ 5 मोल, 4 मोल और 3 मोल अमोनिया को डाल दिया. अब इन तीनों का रिएक्शन उसने एक्सेस AgNO3 के साथ करवा दिया. तीनों के तीनों का रिएक्शन was done with excess AgNO3. समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. इन तीनों का ही रिएक्शन वर्नर ने एक्सेस AgNO3 के साथ करवा दिया. एक्सेस AgNO3. तो जब एक्सेस AgNO3 के साथ वर्नर ने इसका रिएक्शन करवाया, वर्नर नोटिस्ड दैट यहाँ पर 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुआ. यहाँ पर 2 मोल AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ, और यहाँ पर 1 मोल AgCl या सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुआ. अब वर्नर को यहाँ पर क्वेश्चन होने लगा कि यहाँ पर 5 मोल्स अमोनिया थे, यहाँ पर 4 मोल्स अमोनिया थे, यहाँ पर 3 मोल्स अमोनिया था. सबके अंदर 1-1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड था. सबके अंदर एक जैसा ही AgNO3 ऐड किया गया था. तो फिर 3 मोल, 2 मोल और 1 मोल जैसा अलग अलग AgCl क्यों प्रेसिपिटेट आउट हुआ? देखो बच्चों, एक चीज क्लियर है कि AgCl जो है वो Ag प्लस और Cl माइनस के फ्री फॉर्म में होने पर ही बनेगा. Ag प्लस और Cl माइनस फ्री फॉर्म में होंगे तो ही कंबाइन होकर के AgCl बनाएगा. अब आपको एक्सेस AgNO3 में से Ag प्लस तो फ्री स्टेट में मिल ही रहा है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है. Ag प्लस एक्सेस जो है एक्सेस AgNO3 है वो आपका Ag प्लस तो दे ही रहा है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. बट यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर 3 मोल AgCl बन रहा है तो यहाँ से 3 मोल Cl माइनस फ्री होने चाहिए. उसी लॉजिक से यहाँ पर 2 मोल Cl माइनस
फ्री होना चाहिए और यहाँ पर 1 मोल Cl माइनस जो है वो फ्री होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? क्योंकि AgCl जो है वो Ag प्लस और Cl माइनस के फ्री स्टेट में होने पर ही बनेगा, अदरवाइज AgCl बनने का कोई चांस नहीं है। तो वर्नर ने भी इसी चीज़ को माइंड में रखा और इन तीनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो उसने रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया। देखो पहले में उसको पता था कि भाई 3 मोल AgCl है तो 3 मोल Cl माइनस होगा फ्री फॉर्म में, तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्फीयर में रखा और Cl3 3 क्लोरीन को बाहर रख दिया। यहाँ पर उसने उसी लॉजिक से 2 क्लोरीन को बाहर रखा और यहाँ पर सिर्फ 1 क्लोरीन एटम को उसने बाहर रखा। समझना बच्चों, एक सिंपल लॉजिक उसके माइंड में क्लियर था कि यहाँ पर 3 मोल क्लोरीन फ्री होने चाहिए क्योंकि 3 मोल AgCl बन रहे हैं, यहाँ पर 2 फ्री होने चाहिए और यहाँ पर 1 ही फ्री होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप 3 मोल निकाल दो, यहाँ पर 6 अमोनिया कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 कर देते हैं और यहाँ पर 4 कर देते हैं, ठीक है, 6 5 4। अभी आपको रीजन समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा करा। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन निकाल दो तो यहाँ पर क्या होगा, CONH3 6, क्योंकि 3 क्लोरीन चला गया तो बाकी का एज इट इज रहेगा। यहाँ पर CONH3 5 और उसके बाद Cl, यहाँ पर CONH3 4 Cl2। क्यों ऐसा करा, क्योंकि उसको पता था कि ये जो आयंस हैं उसका डिसोसिएशन नहीं होता है, वो सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था। तो उसने इस बेसिस पर इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट किया था। अब इन स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाले थे। जैसे सबसे पहला कंक्लूजन था कि इन एवरी केस, इन एवरी कंपाउंड या इन एवरी केस, in every compound metal atom has 6 groups attached, has 6 groups attached। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसका ये था। This 6 groups can be same or different, this 6 groups can be same or can be different also। ये 6 ग्रुप्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे बच्चों समझना, यहाँ पर आपका 6 अमोनिया है एक जैसा, यहाँ पर 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन है। तो हर केस में आप देख सकते हो कि मेटल एटम के साथ 6 ग्रुप्स जो हैं वो जुड़े हुए ही रहते हैं। ठीक है, ये इसका बहुत प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस था और भी उसकी थियरी के अंदर पॉइंट्स है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहां पर वर्नर की थियरी के हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमने समझ लिया कि हर कंपाउंड के अंदर मेटल एटम के साथ 6 ग्रुप्स जुड़े हुए ही रहते हैं। मेटल एटम के साथ 6 ग्रुप्स हमेशा ही जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद उसने सेकेंड पॉइंट नोटिस किया। फर्स्ट पॉइंट को मैं वापस लिख देता हूं ताकि आपको एक पूरा थियरी का पैक मिल जाए। ठीक है, वर्नर की थियरी का फर्स्ट पॉइंट था कि इन एवरी कंपाउंड metal remains attached with 6 same और different groups। ये 6 सेम या तो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच रहता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोटिस किया, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन वाज metal atom has 2 types of valencies। metal atom have 2 type of valencies, या तो linkages और linkages। these are primary valency, these are primary valency और secondary valency। these are primary valency and these are primary valency and secondary valency।
अब डिफरेंस समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का। तो देखो बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, यहां पर मैं पहले तो कंपाउंड लिख देता हूं, CONH3 6Cl3। जब डिसोसिएशन होगा तब CONH3 प्लस 3Cl-। तो आप समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का यहां पर डिफरेंस क्या है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय oppositely charged ions। they are satisfied by oppositely charged ions। बच्चों प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती हैं, यहां पर वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस से सेटिस्फाई होती है। चलो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या समझना है। जनरली प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है मेटल का। अच्छा, अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात करो, अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। अभी मैं इसको समझा दूंगा बहुत क्लियर वे में, जितना खाली बता रहा हूं वो समझने का प्रयत्न करना। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय आइदर oppositely charged ions, either oppositely charged ions or neutral molecules। या तो वो सेकेंडरी चार्ज ऑपोजिटली चार्ज आयन से सेटिस्फाई होती है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है, और बाय बोथ, या तो फिर वो दोनों से ही सेटिस्फाई हो सकती है। चलो बच्चों अब समझ लेते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है क्या। ठीक है, अब यहां पर एक चीज खाली याद रखो कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं तो एकदम आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज CONH3 6Cl3। जब डिसोसिएशन होगा तब ये बनाता है CONH3 6 प्लस 3 अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें तो CONH3 6Cl2। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड ले लेता हूं, CONH3 5ClCl2। तो ये जब डिसोसिएट होगा तब वो बनाएगा CONH3 5Cl प्लस 2Cl-। अब समझना बच्चों, इस मेटल एटम कोबाल्ट के पास दो टाइप की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से सेटिस्फाई होती है। तो यहां पर आपको जो 3 और 2 दिख रहा है ना, दे आर द प्राइमरी वैलेंसीज। यहां पर वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस से ही सेटिस्फाई होती है। दिस 3 and 2 आर प्राइमरी वैलेंसीज, दे आर सेटिस्फाई ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, दे आर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर दिखाती हैं। अच्छा, अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं वो आपका प्राइमरी वैलेंसी है। तो यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं, मतलब प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोबाल्ट का वो 6 होगा। यहाँ पर कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा क्योंकि 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। देखो उसका आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या दोनों से सेटिस्फाई होती है। देखो यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ साथ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन Cl- भी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है। आपको याद ये रखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज फिक्स होती है। यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉट फिक्स्ड है, वो कोई भी फिक्स नहीं है, वो वेरी हो सकती है। ठीक है,
तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मेटल एटम के साथ जो लिगेंड जुड़ते हैं वो एक स्पेसिफिक जियोमेट्री के अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, जो मेटल एटम के साथ लिगेंड जुड़ते हैं वो एक स्पेसिफिक जियोमेट्री के अंदर ही जुड़ते हैं, और इस स्पेसिफिक जियोमेट्री को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला जाता है। समझते हैं इस पॉइंट को कि लिगेंड्स combine with metal, combine with central metal atom, combine with central metal atom in a fixed geometry, in a fixed geometry called coordination polyhedra, called coordination पॉलीहेड्रा। मेटल एटम के आसपास लिगेंड्स एक स्पेसिफिक जियोमेट्री बना करके ही जुड़ते हैं और इसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो बोला जाता है। बराबर, पॉइंट नंबर जो भी आता है वो आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कैसे होता है। तो सपोज करो कि मेटल के आसपास 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। मेटल के आसपास मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। बराबर, तो यहाँ पर अगर मेटल के आसपास 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ये जो शेप बनाएंगे उसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब लिगेंड जो है वो मेटल के आसपास इस पर्टिकुलर शेप में ही कंबाइन होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी 4 लिगेंड के लिए है स्क्वायर प्लेनर। यहां पर इस तरीके का भी जियोमेट्री पॉसिबल है जिसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। तो जब मेटल के आसपास 4 लिगेंड होंगे, मेटल के आसपास जब आपके 4 लिगेंड होंगे तब वो इन दोनों में से किसी एक जियोमेट्री में ही होंगे, कोई रैंडम जियोमेट्री नहीं होने वाली। अगर मेटल एटम के पास 5 लिगेंड है तो वो इस तरीके की जियोमेट्री बनाते हैं। इसको आप स्टैंडर्ड 11 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो। ये जियोमेट्री जो है वो आपकी ट्रायगोनल बायपिरामिडल है। मतलब अगर मेटल के आसपास 5 लिगेंड है तो वो सिर्फ एक ही जियोमेट्री में कंबाइन हो सकते हैं जिसका नाम है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही जियोमेट्री में कंबाइन हो सकते हैं और इस जियोमेट्री का नाम जो है वो है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अगर मेटल एटम के आसपास 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो ये 6 लिगेंड मेटल एटम के आसपास एक स्पेसिफिक जियोमेट्री में जुड़ते हैं जिसको ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बोला जाता है। ये जियोमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ये इसी तरीके का एक पॉलीहेड्रा जो है वो नीचे भी बनेगा। ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल, नीचे टेट्राहेड्रल बनेगा तो ओवरऑल जियोमेट्री जो है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। तो यहाँ पर से आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मेटल एटम लिगेंड के आसपास, लिगेंड एटम मेटल एटम के आसपास एक स्पेसिफिक जियोमेट्री में ही जुड़ता है। इस स्पेसिफिक जियोमेट्री को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं। लिगेंड जो है वो मेटल एटम के आसपास एक स्पेसिफिक जियोमेट्री में ही जुड़ता है और इस स्पेसिफिक जियोमेट्री को हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा एक जनरल टर्म है। अलग अलग लिगेंड के केस में अलग अलग जियोमेट्रीज पॉसिबल है। 4 लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल पॉसिबल है और या स्क्वायर प्लेनर पॉसिबल है। अगर 5 लिगेंड है तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल पॉसिबल है और अगर 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री जो है वो पॉसिबल है। चलिए, तो ये तो बात हो गई वर्नर के एक्सपेरिमेंट की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलो। अब हमें डिफरेंस समझना है बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख देता हूं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच का आपको डिफरेंस समझना है। तो देखो,
अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखना चाहूँ तो बोथ डबल सॉल्ट एंड complex are formed, both double salt and complex are formed by mixing of two or more compounds. दो या तो ज़्यादा कंपाउंड्स के मिक्सिंग होने से डबल सॉल्ट जो है वो बनता है। समझना बच्चों, हमने अभी ही पढ़ा है कि भैया कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो ये इस तरीके का कंपाउंड बना देता है CONH3 6Cl3। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये आपके कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के मिक्स करने से बना हुआ है। अगर यहाँ पर आप दूसरे केस में डबल सॉल्ट की बात करो तो डबल सॉल्ट में यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फेरस सल्फेट और यहाँ पर ले रहा हूँ अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और ये जो कंपाउंड है उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिक्स होते हैं तब वो एक डबल सॉल्ट बनाते हैं, दो सॉल्ट एक साथ, FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4। इसको बोला जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। इस कंपाउंड का नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये एक डबल सॉल्ट है, बराबर, दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है। तो देखो बच्चों, आपने एक पॉइंट यहां पर क्लियरली समझ लिया होगा कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों दो या तो ज्यादा कंपाउंड्स के मिक्सिंग से बनता है, ये इनकी सिमिलरिटी है। अब यहां पर जब इनका आयोनाइजेशन होगा तब देखने वाली चीज क्रिएट होने वाली है। समझना, जब हम इसका आयोनाइजेशन करते हैं तब ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स आयन दे देता है, ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स आयन दे देता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होकर के इस तरीके के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस फेरस अमोनियम सल्फेट को वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये Fe+2SO4-2 NH4+ इस तरीके के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब डबल सॉल्ट कंप्लीटली gets dissociated into constituent ions and gives the positive test for all the ions present. Double salt undergoes ionization to form the ions which are to form the all constituent ions and gives the positive test for all the ions present in the compound. Whereas coordination compound does not completely separate into the simple ions and do not give the positive test for all the ions. मतलब यहाँ पर कोबाल्ट और अमोनिया अपनी अपनी इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर दिया है और वो एक ही आयन की तरह बिहेव करेंगे। तो कहने का मतलब कंपाउंड हर कंस्टिट्यूएंट आयन की पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, डबल सॉल्ट हर कंस्टिट्यूएंट आयन की पॉजिटिव टेस्ट देता है। चलो इसको लिख देते हैं। डबल सॉल्ट double salt ionizes completely या dissociates completely in constituent ions and gives positive test for all ions. Double salt don't dissociate completely and do not give test for all ions. Do not give test for all the ions, और वो सभी ions की टेस्ट
नहीं देता है। डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है आयंस में और सभी आयंस का टेस्ट नहीं देता है। तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, जिसको कंटिन्यूएशन में सेकेंड लेक्चर में नोट करेंगे। इसको फिलहाल नोट कर लो।